Virtual Legal course in session 1 and the intellectual property law. And we have a barrister Usman Zahir over here. As far as the background, Usman Zahir's here is Usman is a session legal professional with a strong cross-border experience, especially in arbitration, intellectual property, and real estate law. He is an advocate of the Chartered Institute of Arbitrator, a High Court advocate in Pakistan, and advocate registered with the UK Solicitor Regulation Authority (SRA), giving him a unique edge across multiple legal systems. With years of practice under his belt, Usman offers smart, practical legal solutions, with whether in court or in negotiation or through alternative dispute resolution. He's also contributed to legal innovation through his published work on AIA and commercial law across Pakistan, the UK, and Canada. Known for his clear thinking and commitment to his client, Usman is more than a lawyer. He is a trusted advisor who understands how to get result in today's legal landscape. So I would like to invite Sir Usman to over to you. May you please come and start your session. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे उर्दू को मीडियम बना लेते हैं क्योंकि आसान रहता है कि लोगों को समझ भी आ जाती है Azhar, is there a requirement for the camera to be on? Sorry? Is there a requirement for the camera to be on? No, no, it's not. No, it's not a requirement. Like we've already told them to just turn off your cameras. मैं अपना कैमरा ऑन कर सकता हूँ? If you want. Yeah, that's fine. मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि वो एक विजुअल भी रहे कि मैं कौन हूँ मेरे क्या हालात हैं ठीक है That's fine. Okay. Perfect. तो आज का सेशन शुरू करते हैं प्राइमरली आज के सेशन में बेसिकली हम ये समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है एंड उसके जो डिफरेंट रीजन्स में कौन से लॉज हैं, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन क्या देते हैं एंड उसकी रेगुलराइजेशन कैसी होती है. ठीक है, तो obviously if you have questions just put them in the question box and inshallah we will answer them as well. Baharhal, I think let's just start with the course. Azhar, can you share the screen please and kindly share the document as well? Tehreem? Yes. Sir is asking for the document. Would you like to please show the screen, share the screen and show the document? Assalamu alaikum, sir. Usman Saab. Actually, we are having a problem. Can you kindly confirm कि आपने जो डॉक्यूमेंट है अपना या जो स्लाइड्स हैं वो शेयर की थी किसी के साथ? जी 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 मैंने शेयर की थी अनिल के साथ. अनिल के साथ. I've also told him कि कौन सी All right, sir. Let me just come back to you in a while. कोई Sorry. That's fine. No worries.
Is my screen visible to everyone? May you please let me know? No, sir. Yes, sir. स्क्रीन बहुत छोटी नजर आ रही है, Now, is it okay? बहुत छोटी है. No, It's very, sir. Sir, may you please share the screen if you can? let me have a look. एक second. Guys, we are really sorry for inconvenience. It's our first session, so we'll learn the lesson from here, and inshallah, we're gonna get back to you in the best version. Thank you so much for your patience. Welcome. Sir, you may start please with a general intro, and meanwhile, we'll be trying to share the screen. That's fine. ठीक है, कोई मसला नहीं. अच्छा, I will share my screen now. Sorry to interrupt you guys. I have those slides open with me in my background, so if you allow me, if you're permitting me, I can share that. नहीं, it's fine. I think I can share them now. मैं share कर लेता हूँ. Let me share the screen. Let's see. Right. Can everyone see my screen? Yeah, it's visible. Perfect. अच्छा जी. Now, let's just go. एक second. Let me just share it in a way. Entire screen. Yep, that would be fine. Okay. Now, can everyone see my screen? Yeah, it's visible. Perfect. That's good. अच्छा जी. इसको थोड़ा zoom in कर लेते हैं. Right. So, intellectual property law and intellectual property rights. पहले तो हम जरा ये समझ लेते हैं obviously कि intellectual property होता क्या है and intellectual property क्यों जरूरी है. Now, it's derived from two words. Number one is intellect and number two is property. ठीक है? Intellect and property. अब intellect को हम जरा समझ लें intellect होता क्या है. Intellect is your capacity to build something. जो आपकी mental capacity होती है, that is वो इस तरह होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि मुझे ये बताएं, XYZ पर्सन मुझे ये बताएं कि आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। नाउ इमेजिन कि गाड़ी चलाना दुनिया में किसी को नहीं आता, ठीक है। आपने एक ऐसा मेथड डिवाइस किया which tells everyone, which trains everyone on how to drive a car, ठीक है, गाड़ी कैसे चलाएंगे वो उसका सबको, हर किसी को अगर वो एक एल्गोरिथम समझ आ गया तो यू हैव इन्वेंटेड समथिंग, यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग, ठीक है। ऐसी एक और इन्वेंशन की टाइप होती है जहां पे आप प्रोसीजर की जगह गाड़ी को ही इन्वेंट कर लें, ठीक है। द फर्स्ट मैन हु बिल्ट ए कार, ठीक है, दैट वाज फ्रॉम इंटेलेक्ट। हाथ पैर काम करते हैं बाद में, इंटेलेक्ट पहले आता है, ठीक है। आप यानी कि सोचे समझे बगैर आप कोई चीज बना नहीं सकते, तो उसको बनाने के लिए आपकी इंटेलेक्ट की या वो सोच समझ की जरूरत होती है। वो एक पैटर्न से आप चलते हैं ना, दैट पैटर्न इज नोन एज इंटेलेक्ट। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका एक IQ है या EQ है, वो उसको इंटेलेक्ट कहते हैं। अब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे हो गई? प्रॉपर्टी तब होगी व्हेन इन द आईज ऑफ द लॉ वो रजिस्टर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कहीं पे जाते हैं कोई लैंड खरीदने या कोई गाड़ी खरीदने, जब तक आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते उस लैंड पे या उस गाड़ी पे किसी का भी हक हो सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये कैसे पता लगेगा, या जो एक रेगुलेटरी बॉडी है उसको ये कैसे पता लगेगा कि शिफ्ट ऑफ हैंड्स हो गया है, यानी कि शिफ्ट ऑफ ओनरशिप हो गई है। उसने तो शायद, जो गवर्नमेंट है उसने ये प्रॉपर्टी या ये गाड़ी एक पर्सन ए के नाम पे की होगी है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन ए से आगे जो शिफ्टिंग हो रही है या आगे जो ट्रांसफर ऑफ प्रोप्राइटरशिप हो रहा है, वो उसको रिकॉर्ड जो कीप करना है वो जिम्मेदारी है रेगुलेटरी बॉडी की, और उसकी बताने की जिम्मेदारी है आपकी। सो इट becomes an intellectual property when it is registered, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोच, आपने एक चीज इजाद की, कुछ भी हो सकता है, वो एक पैटर्न हो सकता है, वो एक गाड़ी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज इनोवेटिव, ठीक है। It does not have to be recognized as innovative. It should only be innovative. Recognition का एक थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच है कि आपको क्या ये recognition लगती है, क्या ये आपको लगता है कि ये आपने इजाद किया? अगर लगता है तो that's fine. अगर नहीं, अब वो अच्छा है या बुरा है, या वो सब स्टैंडर्ड है या उसका वो हाई स्टैंडर्ड है, वो दैट इज नॉट आवर आर्ग्यूमेंट। हमारा काम ये है करना और उसको एक एक प्रोप्राइटरशिप में लाना। क्योंकि अगर आप नहीं रजिस्टर करते और आप कहते हैं कि जी मैं आई मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, और जो हमारे एक 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 एटीट्यूड है, अनफॉर्चुनेटली हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा एक एटीट्यूड है कि जी मैंने अगर एक होटल खोला या मैं एक न्यू स्टाइल ऑफ मैंने कुकिंग की, ठीक है। इवन इन places like UK, even in places like US, रेसिपीज यानी कि फूड रेसिपीज वो चोरी हो जाती है। अब फूड रेसिपी अगेन इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इट मे बी वेरी आई मीन सरप्राइजिंग फॉर यू कि आपको ये पता लगे कि यार फूड रेसिपी यानी कि मैं तो अपने मदर से सीखा और मदर के बाद मैंने अपने बच्चों को सिखाया और मेरे बच्चों ने आगे लोगों को सिखा दिया। नो, it is still your intellectual property because you've created a pattern, ठीक है। यूके जैसी जगहों पे लोगों ने
बर्गर्स के, यानी कि मैकडोनल्ड्स एंड डिफरेंट जो फ्रेंचाइजेस हैं, डिफरेंट जो कंपनीज हैं, अब इन्होंने एक दूसरे की रेसिपीज कॉपी की और कितनी कोशिश एक कंपेटिटर ने की दूसरे कंपेटिटर से, वो सारा हम न्यूज़ में सुनते हैं. इट्स ऑल वेरी फैसिनेटिंग. बट इसीलिए इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपकी छोटी सी छोटी इजाद, it should be patented, it should be copyrighted, it should be registered as your intellectual property. क्योंकि अगर आप उससे अर्निंग कर रहे हैं तो, और वो आपकी चीज है, तो किसी और बंदे को वो राइट नहीं मिलता कि वो भी उसको अपना बताकर उससे अर्निंग करे, बिकॉज दैट कम्स अंडर फ्रॉड, दैट कम्स अंडर मार्केट, वो क्या कहते हैं उसको, एक वो वर्ड होता है वो, उस यानी कि इट इट कम्स टू बेसिकली फोर फीचर. एक फोर फीटिंग ऑफ मार्केट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है. उसके बाद यूर क्रिएटिंग ए नेगेटिव कंपटीशन विद इन द मार्केट, ठीक है. एक होता है पॉजिटिव कंपटीशन, एक होता है नेगेटिव कंपटीशन. पॉजिटिव कंपटीशन इज दो लोगों ने डिफरेंट चीजें इजाद की, सेम कंपनीज में है, सेम क्लास ऑफ बिजनेस है, ड्रिंक्स की, यानी कि फॉर एग्जांपल आप पेप्सी एंड कोका कोला को ले लें. आज भी पेप्सी एंड कोका कोला में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. दे लुक एग्जैक्टली द सेम, लेकिन देयर स्टिल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है. इसी तरह तो आपकी बेसिकली वो सारी रजिस्ट्रेशन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है. नाउ हम थोड़ा एवोल्यूशन में चले जाते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई, क्या यानी कि कैसे. और हम यहाँ पे तीन जुरिस्डिक्शंस को देखेंगे which are very relevant to us. One is the United States, the other is the United Kingdom, and the third one is Pakistan. ठीक है. अब जो की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट है. Foundational IPR legislation. The US Copyright Act 1976 established modern copyright protection. It grants rights for original works fixed in tangible medium. ठीक है. अब tangible medium क्या होता है और intangible medium क्या होता है, ठीक है. intangibles वो होते हैं जिसको आप वर्ड्स में या उन चीजों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है. tangible वो होता है which has a value to it, ठीक है. या कोई एक ऐसा मीडियम हो जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं या जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपकी एवरीवन नोज कि जो वो है जो आपकी यूनिट्स ऑफ मेजर्स हैं, दे टेंजिबल मीडियम्स, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सारे. पहले क्या होता था, देयर वर नो टेंजिबल मीडियम्स, तो हर कोई अपने तरीके से वो कर रहा था. टेंजिबल मीडियम इज जहां पे हर कोई देयर अलाइंड विद योर थिंकिंग, और वो एक मीडियम पे आ गया और वो वहां पे कह रहे हैं अच्छा ये बात इस तरह, ठीक है. तो यूएस कॉपीराइट एक्ट 1976 ने एस्टैब्लिश किया मॉडर्न कॉपीराइट प्रोटेक्शन को. मॉडर्न कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी ऑब्वियसली आपके जब टेक्नोलॉजी आई और ये सारी चीजें आई तो वहां पे भी मॉडर्न कॉपीराइट जरूरी था. पहले आप सारी चीज पेपर्स पे करते थे, आप सारी चीज इस तरह करते थे, ठीक है. बट इट wasn't registered. Most of the work that scientists have done, they weren't registered at the time. इसलिए सबसे बड़ा जो आपका जो एक टेक्नोलॉजिकल फ्यूड हुआ था, दैट वाज थॉमस एडिसन एंड टेस्ला के बीच में. टेस्ला कंपनी नहीं, टेस्ला एक एक्चुअल बंदा था, ठीक है. एडिसन वाज ए गुड पब्लिशर, ठीक है. ही वाज गुड मार्केट वो सेल्समैन था. And Tesla was the original genius behind inventing a light bulb. कॉपीराइट समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप
इस चीज को पढ़ें, बिकॉज उनकी मेहनत जो है वो सारी जाया हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ए गुड एंड ए फास्ट सेल्समैन। ठीक है, उसने उनके आइडिया चुराया और वो अपने आप के लिए रजिस्टर कर लिया, और वो यानी कि अपने, और अभी भी जो कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं दे स्टिल थिंक दैट थॉमस एडिसन वाज द पर्सन जिसने लाइट बल्ब इजाद किया या जिसने ये चीजें की। हाउएवर इट वाज टेस्ला। ठीक है, तो इसलिए अब देखो साइंटिस्ट ने इतनी वो किया, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, हर किसी को पता है। जो है 3 लॉज ऑफ फिजिक्स, 3 लॉज ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन। ठीक है, उसके बाद यानी कि डिफरेंट उन्होंने वो क्रिएट किए, बट नन ऑफ देयर वर्क वाज रजिस्टर्ड। कोई फायदा उठा सकता था, ठीक है, वो पेटेंटेड आइडियाज नहीं थे, क्योंकि उस वक्त पेटेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, या अगर करता भी था इट वाजंट दैट रिकग्नाइज्ड। ठीक है, फिर आई जी यूनाइटेड किंगडम में द कॉपीराइट डिजाइन्स एंड पेटेंट एक्ट 1988 provides comprehensive protection for literary, dramatic, musical and artistic work. अब ये एक चीज आप नोट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो यूनाइटेड किंगडम है उनकी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर। कॉपीराइट डिजाइन पेटेंट एक्ट, यूएस कॉपीराइट एक्ट 1976। ठीक है, जो टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करती है कि जी लॉ क्या है, यानी कि वो ऑफेंस क्या है, उसका मेंस रिया क्या है, यानी कि इंटेंशन ऑफ दैट ऑफेंस क्या है, और एक्शन ऑफ दैट ऑफेंस क्या है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में है। ठीक है, या जिस तरह हमारे इंडियन पीनल कोड में है। ठीक है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान पे आते हैं तो व्हाट हैज बीन सेड हियर इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2012 established IPO Pakistan as the integrated regulatory authority. Now please keep in mind that IPO Act was established in 2012. The Patent, Copyright and the Trademark Acts are either in 2001 or way before that. अब how is this justifiable कि एक एक्ट जो है आपके 12 या 20 या 25 साल बाद आ रहा है, जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को वो पावर दे रहा है या वो अथॉरिटी दे रहा है कि जी आपको हम अथॉरिटी देते हैं कि आपके साथ ये रिकग्निशन हो, आपके पास ये पावर होगी, लेकिन द ऑफेंस and the act for that offense was created way before the organization itself. ठीक है, तो यहां पे एक स्टैट्यूटरी इशू है जिसको हमने बेसिकली अभी जाके काउंटर किया है with a lot of good judgments of the Supreme Court and the High Court. ठीक है, now patent protection across borders. Now United States में जो रूल है that is the America Invents Act AIA shifted from first to invent to first inventor to file system in 2013. ठीक है, अब फर्स्ट टू इन्वेंट एंड फर्स्ट इन्वेंटर टू फाइल में क्या फर्क है? फर्स्ट टू इन्वेंट लाखों लोग हो सकते हैं, क्योंकि आइडियाज अब उतने वो नहीं रहे, उनमें इतनी जेन्युइननेस नहीं रही, यानी कि इफ आई से इतने टेक्निकल नहीं है आइडियाज, अब बहुत बहुत जाके वो हो गए, सिमिलर हो गए, बिकॉज जो टेक्निकल आइडियाज थे वो एज एक पिरामिड था, वो पहले यहां से शुरू हुआ, बहुत नैरो था, और फिर आते 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 इस तरह ब्रॉड हो गया। ठीक है, सो दैट आइडिया फर्स्ट टू इन्वेंट would have worked in the time of Einstein, in the time of McDonald's, in the time of Pepsi, Coca-Cola, because they were first to invent. They were inventing something genuine.
ठीक है, उसका जो केस है वो एक्टिविस्ट यूके लिमिटेड वर्सेस एली लिली है, और ये 2017 का केस है, एस्टैब्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस इन यूके पेटेंट लॉ। उसके बाद पाकिस्तान आ जाए तो पेटेंट ऑर्डिनेंस, अगेन इसी पेटेंट ऑर्डिनेंस बना आपको 2000 में, 2000, ठीक है, provides 20-year protection with weak enforcement mechanism, lacks significant patent litigation history with limited judicial expertise and intervention in technical matters. मसला ये है, as I said, Pakistan has been very slow in the race of inventions and registering those inventions as patents. There is no doubt कि पाकिस्तान ने अभी बहुत अपने आप को डेवलप किया है, ठीक है। अगर आप आजकल के केसेस देखें, ठीक है, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि इन्फोर्समेंट इज देयर। अभी भी उस एक्सटेंट तक इन्फोर्समेंट नहीं आई, हाउएवर द इन्फोर्समेंट इज स्टिल देयर एंड इट इज ग्रोइंग बाय द डे। लेकिन अब एक इशू वहां पे भी आ जाता है कि ये तीनों कंट्रीज जो है, ये तीनों कंट्रीज now they're facing a struggle with intellectual property of artificial intelligence, ठीक है। वो हमारे सेकंड लेक्चर का है, तो हम उसको अभी नहीं इतना वो करेंगे, बट डू रीड अप ऑन इट एंड वी कैन डिस्कस इट एज वेल। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो हमें बताते हैं कि इन्फोर्समेंट कैसी है। The 2012 case resulted in $1 billion damages for design patent infringement. Established design patents significant commercial value. Again, मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक फोन है, आप रीजनेबल, अब वो रीजनेबलनेस का एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपके पास केस आया, नाउ यू आर द जज, ठीक है। एक फोन कंपनी है और दूसरी फोन कंपनी है। इफ एज ए रीजनेबल पर्सन आपको बाय एक्सपर्ट विटनेसेस या बाय विटनेसेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स, ऑफ अदर सॉर्ट्स, वो आपको ये बताते हैं कि जी जो डिजाइन ऑफ दैट वो है, पेटेंट है, या डिजाइन ऑफ दैट फोन है, वो इन फर्स्ट इंस्टेंस बड़ा सिमिलर लगता है टू द अदर फोन। यानी कि अगर मैं आईफोन आज पकड़ता हूं, सो आई हैव टू फोन्स, आई कैन शो यू बोथ ऑफ देम। तो let me just stop the screen for a moment. Can everyone see me? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. I have two phones here, ठीक है। One is an iPhone and the other is an Android, ठीक है। Now can you tell the difference between the two? Can anyone tell the difference between the two? आपको इनमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यानी कि अगर मैं फोन इस तरह ये पकड़ूं तो क्या एक आपको, आप अगर चल रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सा फोन है? सर मेनली जो लेआउट है फोन का, और सेकंड इसका ब्रांड नेम। यस। अब इन्होंने क्या किया कि they've basically established फोन का डिजाइन। अब वो रीजनेबलनेस क्या है कि अगर मैं चलता हूं और आप यानी कि चल रहे हैं और आप देखते हैं फोन को और आप कहते हैं अच्छा ये तो फोन ये है, और आपको धोखा नहीं मिलता, ठीक है, कि अच्छा ये तो इस तरह है
या ये इस कंपनी का फोन है, तो देन दे हैव नॉट इन्फ्रिंज पेटेंट। लेकिन अगर कोई आईफोन का नॉक ऑफ बनाता है, यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और उसको सैमसंग का नाम दे देता है, सैमसंग कैन बी सूड फॉर द सेम। यही सेम केस हुआ एप्पल एंड सैमसंग का। ठीक है, एप्पल एंड सैमसंग at one point they started making similar kind of phones, जिसमें इशू ये बना कि people got confused कि यार ये फोन इस तरह है, ये फोन उस तरह है। ठीक है, तो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अब दूसरे केस पे आ जाए, लूकस फिल्म वर्सेस एंसवर्थ। ठीक है, the 2011 Supreme Court ruling clarified that functional designs like stormtrooper helmets aren't sculptures under copyright law. अब हेलमेट्स हैं, ठीक है, अब हेलमेट्स के डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं, अब हेलमेट्स की डिफरेंट कंपनीज हैं। कुछ चीजों में आप अगर सिमिलैरिटी आ भी जाती है तो वो ये नहीं कह सकते कि यार ये अच्छा इस कैटेगरी में फॉल इन करता है। स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स जो होते हैं वो मूर्तियां होती हैं बेसिकली, जो यानी कि आप वो देखते हैं ना, स्टैच्यूज जो इस तरह देखते हैं आप। अब वो स्टैच्यू जो है वो भी एक ऑब्वियसली एक एक किसी की आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बिकॉज ही इज डन द एंटायर वर्क। ठीक है, अब अगर कोई वो कॉपी करता है तो दैट फॉल्स अंडर कॉपीराइट लॉ। हाउएवर कुछ चीजें they do not fall under any of these infringements, such as stormtrooper helmets. तो फंक्शनल डिजाइन्स, फंक्शनल इज कि वो फंक्शनैलिटी उसकी पूरी है। इट डज नॉट मैटर कि एक कंपनी फंक्शनैलिटी पूरी करने के लिए दूसरी कंपनी को ही एग्जैक्टली कॉपी कर ले। इट डज नॉट रियली मैटर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे they are looking for protection as well and the other company is looking for protection as well. हेलमेट है ना, ठीक है, अब उसने भी सिमिलर किस्म का बना लिया। अब आपने देखे होंगे आपके बाइक हेलमेट्स जो होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर, डिफरेंट कंपनीज के होते हैं लेकिन वो सिमिलर होते हैं। सो यू कैन नॉट इन्फ्रिंज, वहां पे आप ये नहीं कह सकते कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गई है। ठीक है, बिकॉज कुछ कैटेगरीज जो है वो उसमें आप इन्फ्रिंजमेंट कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। अब दूसरा एक आ गया, यूनाइटेड ब्रांड वर्सेस कोका कोला। 2003 Sindh High Court case established trademark protection standards for international brands operating in Pakistan. अब it does not matter कि आप किस कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं, as long as your business is registered with the SCCP या with आपके जो डिफरेंट कंपनी की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसके साथ अगर उस कंट्री के वो रजिस्टर्ड है और वो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर। तो जो लोकल कंपनीज हैं वो उस ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि जस्ट बिकॉज हम अंडर द रेडार हैं और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और हम एक लोकल कंपनी है तो हम ये काम कर सकते हैं, फौरन उनके ऊपर एक्शन होगा। एंड वी हैव डन दैट। हमारा एक इस तरह केस था, हमारी एक बिल्कुल बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस की एक हमारा क्लाइंट था एंड देयर वर्क वाज बीइंग कॉपीड बाय द हाई स्ट्रीट इंटरनेशनल थी। However, it does not matter कि आप
यानी कि लोकल है एंड आपके यानी कि वो बिजनेस क्लास नहीं है या वो बिजनेस जो है ना वो अभी आपको वो लेवल नहीं है, इट डज नॉट रियली मैटर। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि क्या आपने कॉपी किया है कि नहीं किसी का काम। अगर यस तो एक वो है पिरामिड है। अगर आपने कॉपी किया है तो क्या ये इनफ्रिंजिबल आइटम्स में आता है कि नहीं। अगर आता है तो क्या ये जो आपने चीज कॉपी की है क्या ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है देन आपको जो है पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। अगर नहीं है तो फिर मे बी यू कैन रजिस्टर इट इन योर ओन नेम। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेनिफिट कर रहे हैं और दूसरा बंदा इतना बेवकूफ है कि उसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, ठीक है, रजिस्टर इट इन योर ओन नेम। ठीक है, बिकॉज आइडियाज कैन कम, आगे पीछे आ सकते हैं। आपका दोस्त है, उसका एक आइडिया आया होगा, एक हफ्ते बाद आपको भी वो आइडिया आया होगा, बट whoever beats the other person to the market is the winner। ठीक है, अब आ जाए जी क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट चैलेंजेस। अब जुरिस्डिक्शनल इश्यूज हैं, ट्रिप्स की एग्रीमेंट है, इन्फोर्समेंट डिस्पैरिटीज है, बायलैटरल ट्रीटीज है। ठीक है, अब हमने ये तो कह दिया कि बड़ी कंपनी आ जाए और ये छोटी कंपनी ये और वो। लेट्स हैव अ लुक एट द इश्यूज। जुरिस्डिक्शनल इश्यूज, territorial limitations create enforcement gaps। The NML Capital versus Republic of Argentina 2014 case highlighted jurisdictional complexities। अब कुछ jurisdiction जो होती हैं वो कहती है नहीं जी हम आपकी जजमेंट नहीं मानते। कुछ jurisdictions होती हैं कि हम फॉरेन अवार्ड्स को नहीं अप्रूव करते, यानी कि फॉरेन जैसे आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स होते हैं या फॉरेन जजमेंट्स होती हैं, हम उनको नहीं अप्रूव करते, नहीं मानते। इसी तरह कुछ फॉरेन जजमेंट्स भी हम नहीं मानते। ठीक है, तो दैट क्रिएट्स अ लिमिटेशन और वो लिमिटेशन जो है वो एक इन्फोर्समेंट गैप क्रिएट कर लेती है। Another thing is TRIPS agreement requires minimum standard but implementation varies। The US Special 301 report regularly cites Pakistan for inadequate enforcement। Enforcement का भाई हमारे पाकिस्तान में बहुत इशू। आप छोटी सी कोर्ट पे चले जाएं टू दी सुप्रीम कोर्ट, इन्फोर्समेंट जो है ना, इन्फोर्समेंट सिर्फ ये नहीं होती कि एक जजमेंट पास हो जाए, उस जजमेंट को इन्फोर्स करना भी जरूरी है। ठीक है, अब उस जजमेंट अगर वो जजमेंट इन्फोर्स ही नहीं होती तो वो जजमेंट एक जजमेंट रहेगी, दैट वुड जस्ट बी अनदर published article। It has no more value than a published article अगर वो इन्फोर्समेंट नहीं है। ठीक है, अब यूएस एंड डिफरेंट कंट्रीज वो पाकिस्तान को इस चीज में इनएडुकेट करार देती हैं क्योंकि इन्फोर्समेंट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी डेवलप हो रही है, हुई नहीं है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई। यानी कि मास लैंडस्केप पर वो इन्फोर्समेंट नहीं है। आप नहीं देखेंगे कि जी हर कोर्ट जो है वो देर वेरी क्विक ऑन देयर फीट और वो जो है ना टक 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 करके वो सारा इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आईपीओ इन इटसेल्फ इट हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज। वो एक पॉलिटिकल एक ज्यादा इशू है, एक इंस्टीट्यूशनल ज्यादा इशू है rather than a टेक्निकल इशू, क्योंकि वो वहाँ पे सारा टेक्निकल एरिया तो है, वो सारी चीजें कवर्ड हैं, देर ऑल टेक्निकल। हाउएवर इन्फोर्समेंट नहीं है, हाउएवर वहाँ पे टेक्निकल माइंडेड पीपल नहीं है, व्हिच इज अगेन अनदर इशू जो हमने फेस किया। बट आई डोंट नो कि अभी क्या सिचुएशन है। हाउएवर अभी तक रिपोर्ट्स यही मिल रही हैं कि आईपीओ इज वर्किंग सब स्टैंडर्ड, बिलो द स्टैंडर्ड। अच्छा जी, enforcement disparities, significant variance in judicial expertise and customs, enforcement
capacity between developed and developing nations. अब एक जज है, वो कहता है कि भाई ये, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर एक जजमेंट देता है. दूसरा जज जो है वो कहता है कि नहीं, मैं कस्टमरी ग्राउंड्स पर जजमेंट दूंगा बिकॉज हमारे कस्टम्स एंड वैल्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट पे वो देता है. बोथ आर राइट, डोंट गेट मी रॉन्ग, they're not, none of them is wrong, लेकिन वो भी एक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जो इन्फोर्समेंट एक जज के लिए मायने रखती है वो शायद दूसरे जज के लिए मायने ना रखती हो. ठीक है. अब दूसरा बायलैटरल ट्रीटीज आ गया. UK US agreements provide stronger protection than US Pakistan arrangements. UK US Mutual Legal Assistance Treaty facilitates evidence sharing. अब यूके का बड़ा एक मजे का एक काम है, और ये जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें इन्फोर्समेंट जो है ना वो बहुत मजे की है. क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट है. इसमें मेरा पेपर भी था कि क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट कितनी टाइट नेटेड है विद यूरोपियन कंट्रीज, कि वो इन्फोर्समेंट, यानी कि अगर उन्होंने इन्फोर्समेंट करनी है एक जजमेंट की, या उन्होंने एविडेंस शेयरिंग करनी है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन दे वुड शेयर एविडेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन दे वुड डू ए टैक्टिकल इंटरवेंशन. ठीक है. किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, तो वो एक यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो अपने एजेंट्स या अपने जो पुलिस इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो दोनों मिलकर, दोनों इन्फोर्समेंट एजेंसीज दोनों कंट्रीज के मिलकर वो उस कल्प्रिट को पकड़ेंगे. क्राइम को जो है ना वो रूम नहीं देते टू डेवलप. ठीक है. इसी तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज हैं, या जो इश्यूज हैं ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, या जिस तरह भी इश्यूज हैं, दे आर वेरी मच यानी कि जो है ना बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे को स्पेस देते हैं कि आप भी चले इन्फोर्समेंट करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, तो इस तरह कर लेते हैं. दे हैव प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड ट्रीटीज फॉर इट, और इनकी प्रॉपर एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इस चीज़ पर. Now, legislative approaches to digital IP protection. अब jurisdiction, key legislation and notable provisions. United States Digital Millennium Copyright Act 1998. Safe harbor protection, anti-circumvention provisions. ठीक है. दूसरा आ जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम डिजिटल इकोनॉमी एक्ट 2010. साइट ब्लॉकिंग पावर्स, ग्रेजुएटेड रिस्पांस टाइम. उसके बाद आ जाता है आपका पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट. लिमिटेड आईपी प्रोविजंस, फोकसेस ऑन साइबर क्राइम. अब डिजिटल आईपी किसी ने क्रिएट की, ठीक है, तो उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? यूएस का एक सिस्टम है, यूके का एक सिस्टम है, एंड पाकिस्तान का एक सिस्टम है. हाउएवर इन तीनों सिस्टम्स में अपने अपने डिफरेंसेस हैं. अगेन, पाकिस्तान कम्स एट द वेरी बॉटम ऑफ इन्फोर्समेंट, बिकॉज जो इन्फोर्समेंट ये कर रहे हैं, या जिस एक्ट के थ्रू इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, उस एक्ट का काम है साइबर क्राइम को डील करना. ठीक है. आईपी को एज अ ऑफेंस नहीं डील करना, इसका ये काम नहीं है. लेकिन ऐसी कुछ जजमेंट्स हमारे पास है जिसमें वो कहते हैं कि यार देखें, जो प्रोसीजरल रूल्स हैं, सच एज जो आपके पाकिस्तान पीनल कोड है,
वो आपके बैंकिंग स्टैट्यूट्स पर भी लग सकता है। सॉरी, जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो आपके बैंकिंग ऑफेंसेस पर भी लग सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड पे लगे, ठीक है। इसी तरह आपके जजमेंट्स कुछ यहाँ पे ये इस तरह भी आ जाती हैं कि जो आईपी की प्रोविजंस जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में डील होती हैं, बट यू वुड नीड टू रीड इनटू दोस एक्ट्स एंड सेक्शंस ऑफ द लॉ, क्योंकि आपका लॉ जो है वो बहुत, इट इज ए गुड थिंग एंड ए बैड थिंग, ठीक है। इट कैन बी ए प्रो एंड इट कैन बी ए कॉन्सिक्वेंस एज वेल, कि आपके लॉ जो है वो बहुत ओपन एंडेड है, ओपन स्पेस में है। तो कोई भी एक सेंटेंस ग्रैब कर लेता है और कह लेता है कि जी ये यहाँ पे भी फिट हो सकता है, लेकिन वो फिटिंग का जो मसला है, वो क्राइटेरिया अभी तक सेट नहीं हुआ उस लेवल पे कि ये हम किस हद तक फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उस पे आई मीन ऑब्वियसली वर्क नीड्स टू बी डन। नाउ रेमेडीज एंड रिलीफ। Investigation. US offers broad discovery under federal rules. UK provides Norwich pharmacal orders. Or Pakistan has limited pre-trial disclosure. Ab discovery, I mean, that is quite true, but not quite true. जब आप प्री ट्रायल डिस्क्लोजर की बात करते हैं तो आई डू स्टिल बिलीव के यू वुड शेयर कॉपीज ऑफ आपका जो प्लेंट है वो आप शेयर करते हैं, एंड सारी एविडेंस एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी अटैच्ड, बट वो किस हद तक आप शेयर कर सकते हैं और डिस्क्लोजर कितना है, वो थोड़ा डिफरेंस है बिटवीन दीज थ्री प्रोसीजर रूल्स। Interim relief. All jurisdictions offer preliminary injunctions, but standards differ. UK American Siamid test versus US 4-factor test. ठीक है। अब डिफरेंट इंजंक्टिव ऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, वो अब डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट तरीकों से देती है, लेकिन हर कंट्री का इंजंक्टिव ऑर्डर जो है वो या स्ट्रिक्ट होगा या बहुत लीनियंट होगा, या उनके स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे या उनके स्टैंडर्ड्स बहुत लीनियंट होंगे, ठीक है। सो and then you've got damages, and then you've got border measures. US allows statutory damages up to $150,000 per work. UK provides additional damages for flagrant infringements. Pakistan caps damages. अब अगेन ये एक अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। अब बिजनेस को आप कितना डैमेज दे सकते हैं, लेकिन अगेन सवाल ये कि बिजनेस को आप कितना डैमेज दे सकते हैं। यानी कि एक जगह पे अगर आप एक कंपनी के फायदे के लिए सोच रहे हैं कि यार मैं इसको क्रिपल नहीं करना चाहता, चलो इससे एक इशू हो गया, इसने एक इन्फ्रिंजमेंट कर लिया, दैट्स फाइन, एक वार्निंग के साथ छोड़ दो, वार्निंग ये है कि फाइन कर लो, डैमेजेस कर लो, ये कर लो। एक है कि जी बिल्कुल उसको क्रिपल कर लें कि तुमने भाई ये गलती की क्यों पहली जगह। अब स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट में आप बिजनेसेस को क्रिपल कर रहे हैं टू फंक्शन, लेकिन इन द सेम टाइम आप बिजनेसेस को ये अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि दे हैव ए सेफ एनवायरनमेंट टू फंक्शन, और कोई उनकी आईपी नहीं चुरा सकता। यूके थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं, वो एडिशनल डैमेजेस भी दे देता, यानी कि लिटिगेशन डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, तो वो भी दे देता। पाकिस्तान भी एक अच्छा काम करता है, वो डैमेजेस कैप कर लेता है।
कि जी चले ये डैमेजेस है, रीजनेबल ये बनता है, एंड देयर यू गो, ये आपके डैमेजेस है। Border measures. US Customs can seize suspected infringing goods ex officio. UK requires court orders. Pakistan lacks effective custom procedures. अब again it comes, अब देखिए, it is very unfortunate, लेकिन it is the entire legal landscape of Pakistan. हमने एक छोटा सा, ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड नीश्ड एरिया ऑफ लॉ है, नीश एरिया ऑफ लॉ है, ठीक है। ये एक ऐसे नहीं है कि कोई सिविल प्रैक्टिस है, ये क्रिमिनल प्रैक्टिस है, ये फैमिली प्रैक्टिस है, एक बहुत नीश एरिया ऑफ लॉ है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एरिया ये। उसमें भी आप देखें कि यहाँ पे कितने कितने इदारे, कितने कितने लॉज, कितने कितने वो एक साथ काम करेंगे तो ये प्रॉपरली काम करेगा। साथ नहीं काम करेंगे, इफेक्टिवली नहीं हो काम करेंगे, तो वो इट विल फेल द एंटायर सिस्टम। कस्टम्स एंड बॉर्डर्स, जहां पे स्मगलिंग भी होती है, जहां पे क्या कुछ नहीं होता, ठीक है। अब वो इफेक्टिव कस्टम्स प्रोसीजर, आप एक कस्टम्स ऑफिसर के पास जाए, आप उनको कहें जी आईपी इन्फ्रिंजमेंट है, वो पहले अपना जो है ना वो कहेगा कि यार आप पहले मुझे समझाएं कि आईपी इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है, आईपी क्या होता है। आज भी कस्टम्स को ये नहीं पता लगा कि जी एक लेटर में और एक जो है वो गिफ्ट डीड में कितना फर्क है, या एक बुक में और एक जो है वो किसी के पर्सनल लेटर्स में, उनको मैं अगर एक वो कर लूं तो उसमें कितना फर्क है। हमारे साथ इस तरह एक केस हुआ कि वी हैव टू एक्सप्लेन टू दैट पर्सन कि भाई आप जिस लॉ को आप पढ़ रहे हैं उसका आप पहले वो टाइटल तो पढ़ें कि वो टाइटल है क्या। जी वो कह रहे कि जी इस पे टैक्स लगेगा, इस पे कस्टम्स टैक्स लगेगा। मैंने कहा भाई कस्टम्स टैक्स क्यों लगेगा, क्योंकि जी लॉ ये कहता है, एंड लॉ वही कह रहा था कि जी कस्टम्स टैक्स लगेगा। लेकिन द इशू वाज कि वो जो मटेरियल था या वो जो आइटम था, इट डिड नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। लेकिन अब ये कस्टम्स वालों को कौन समझाए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हर ऑफिसर, हर ऑफिस जब तक प्रॉपरली प्रोसीजर्स पर नहीं समझेगा, यू कैन नॉट हैव एन इफेक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब फ्यूचर ऑफ ग्लोबल आईपीआर प्रोटेक्शन, अब हार्मोनाइजेशन पाथवेज है, ठीक है। Bilateral treaties increasingly incorporate stronger IP protections than TRIPS minimum, ठीक है। Enhanced TRIPS plus standards, judicial cooperation हो गई, उसके बाद technological solutions, blockchain and AI are enabling new approaches to IP registration and infringement detection globally, ठीक है। उसके बाद cross border judicial training programs are building enforcement capacity in developing nations। अब बेसिकली आगे भी फ्यूचर में इस पे बहुत काम हो रहा है। वी आर ऑल इन ए वेरी एक्साइटिंग टाइम जहां पे आईपी लॉ में बहुत काम हो रहा है, एंड इट इज देयर इज स्टिल ए ह्यूज वैक्यूम जिसमें काम कर सकते हैं आप एज प्रैक्टिशनर्स, आप एज बिजनेसमैन, आप एज enforcement officers, judges, police officers, anything. But the decision is yours at the end of the day. क्योंकि you need to understand कि जब तक आप इस सिस्टम को फर्दर नहीं करेंगे, जब तक आप जो है वो इसको एलिवेट नहीं करेंगे इन योर डेली प्रैक्टिस, तब तक द सिस्टम वोंट चेंज।
क्योंकि सिस्टम भी लोगों से बना होता है, ठीक है। सो whenever you're opening a new company, register your trademark. किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, उसको कहें भाई पहले अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करो, क्योंकि कल को जब क्लेम आएगा तो अनड्यू लिटिगेशन होगी। अनड्यू लिटिगेशन की हमें जरूरत नहीं है। देखिए, आप पैसा कमा सकते हैं, यू कैन अर्न समथिंग फ्रॉम डूइंग गुड बिजनेस एज वेल। आपको ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है, ये इस बात पे जाने की जरूरत नहीं है कि जी जब तक क्राइम होगा तब तक हमारे पास केस आएगा। नहीं, पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ सोचें कि जी आईपी लॉ जो है इसको डेवलप कैसे करें। एंड आई एम स्टिल टेलिंग यू कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है ऑफ इफेक्टिव आईपी प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस? Does anybody have any question? They may raise your hand. जी अब्दुल्ला। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंपनी या नेम्स वगैरह जो होते हैं रेस्टोरेंट के, वो एक दो नेशंस में, एक पाकिस्तान में भी सेम नेम से रजिस्टर्ड है नेशनली, और इंडिया में भी सेम नेम से रजिस्टर्ड है नेशनली, दोनों के ऑनर्स अलग हैं, तो इंटरनेशनल में किसको वो माना जाएगा उसका पेटेंट ऑनर? फर्स्ट जो पेटेंट इनकॉर्पोरेशन की जो इनके सर्टिफिकेट होगा जिसपे डेट पहली होगी वो उसको माना जाएगा। थैंक यू सर। अच्छा, किंजा का एक क्वेश्चन है, सर कैन वी अपील फॉर अ कॉपीराइट ट्रेडमार्क इवन फॉर अ स्मॉल बिजनेस एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस इन अ नटशेल? अच्छा, appeal for a copyright. What do you mean by appeal for a copyright trademark even for a small business? I don't understand. किंजा आप बोल सकती हैं प्लीज? Yes, you can. अच्छा, तो इस तरह है, पहले मैं किंजा को जवाब देता हूँ। सो यस, यू कैन। तो उस पे देखिए, स्मॉल कंपनीज हो या लार्ज कंपनीज हो, यू हैव टू रजिस्टर दी कॉपीराइट। यू हैव टू, देखिए आप कोई रिसर्च पेपर निकालती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी की ये वो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पब्लिश दैट मटेरियल इन योर नेम, अगर वो आपकी पब्लिशिंग है, ठीक है। सुपरवाइजर कोई भी हो, ही कैन नॉट पुट इट इन हिज ओन नेम, बिकॉज आईपी आपका है, सारी चीजें आपकी हैं, यू हैव जस्ट बीन गाइडेड इनटू दैट डायरेक्शन, जिसपे आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। हाउएवर दे कैन नॉट बी को ऑथर्स एज वेल। अब आपने जब बिजनेस की बात की, तो उसी तरह बिजनेसेस भी स्मॉल हो या बड़ी हो, इट डज नॉट मैटर, they have to be registered, they should be registered with their respective companies, ठीक है, यानी सॉरी with their respective regulators such as SECP, ठीक है, या such as आपका जो कोई भी कंपनीज वो है अंडर द कंपनीज एक्ट आता है, वो उसके अंडर रजिस्टर होंगी, वो ही कॉपीराइट रजिस्टर करें आप with the IPO, ठीक है। अच्छा जी, जी ज़ैनब। सर आपने एवोल्यूशन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स पाकिस्तान के, उन्होंने मतलब आईपी लॉ को डेवलप करने में कुछ हद तक मदद की है, तो सर उन पे थोड़ा सा मतलब उन पे बता सकते हैं आप? ये कुछ केसेस हैं which I can share with you as well. एक है सनोफी वर्सेस जाफा, दूसरा है केस, ट्रेडमार्क केस है 2018 का,
शिजान सर्विसेज वर्सेस शिजान बेकर्स। दूसरा एक केस है, where is it? Oh, there is a Siemens judgment as well of the जो वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है 2019 की। So all of these kind of cases मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, and we can discuss those further in some other day. लेकिन there is a lot of development happening even now. तो उसमें अगर आप Google सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये सारे cases. अच्छा जी, so you have mentioned to the weak international. What steps should we take to improve the अच्छा, should we improve the international enforcement of IP laws? अच्छा, IP laws के international enforcement यही है कि आप पहले as a country recognize करें, ठीक है, और as a country आप agreements में, bilateral agreements में, आप countries के साथ bilateral agreements में, ठीक है, यही हो सकता है ना। देखिए, अब इंडिया के साथ आपका सबसे बड़ा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपके पास चाइना का बॉर्डर है, उसके बाद आपके पास ईरान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इनके साथ आप अपनी ट्रीटीज क्यों वो मेंटेन नहीं करते? ठीक है, चले जो भी पॉलिटिकल टेंशन है या जो भी है विद इंडिया व्हाटएवर इट इज, बट इन्फोर्समेंट, देखिए एक बिजनेस को इंडिया में नुकसान हो, आपका बिजनेस है पाकिस्तान में, आपने डेवलप किया, आपने इंडिया में उसकी एक फ्रेंचाइज खोल ली, ठीक है, उसको इंडिया में नुकसान हो या पाकिस्तान में हो, देयर इज नो डिफरेंस, नुकसान आपके बिजनेस को हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां पे बिजनेस को नुकसान हो रहा है तो यू हैव टू हैव दीज सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट्स जहां पे इन्फोर्समेंट को आप काबू कर सके, इन्फोर्समेंट आपके पास हो। इन्फोर्समेंट जब तक नहीं होगी तो यू कैन नॉट डू क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो ये है कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यार आई डू नॉट नो व्हाट the purpose of World Investment and Trade Organization is. I know the purpose of World Intellectual Property Organization, जिसका काम है to regulate all of the IP, international IP laws and guidelines for the countries that are signatories for those. And I do not know कि अगर ये within that it's a department of that same organization or not. However, I have no idea of this. अच्छा जी, अच्छा वलीद आपका, सॉरी वहीद, आपका एक क्वेश्चन था। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। सो अच्छा, how long do these protections last? Around about 20 years. 20 years कुछ countries में indefinitely है, ठीक है, and it is different for copyright, patent and trademark. It is different for how long these protections really जो है ना वो last करती हैं, तो it's different for countries as well and circumstances भी different है। जी अब्दुल्ला। Sir, apart from TRIPS and WIPO, what are the primary statutes internationally? यही है, वेपो ही है आपका मेन जो स्टैट्यूट या स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, दैट इज विपो फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। Thank you. अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं अरसल। हाउ will we be able to receive a copyright or a trademark for generic dictionary words like amazing or cities like? अच्छा, I do not understand this question, अरसल। क्या मतलब ये नहीं कि कॉपीराइट फॉर एक अच्छा कुछ वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते एज पर कॉपीराइट लॉज, जैसे पाकिस्तान यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड, मक्का यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड, ठीक है। लेकिन आप अगर कहें कि पाकिस्तानीज कटलरी, पाकिस्तानी कटलरी,
पाकिस्तानी फैशन कटलरी, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप कहें कि पाकिस्तान कटलरी या कुछ इस तरह, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप नहीं यूज कर सकते, उसकी एक्सप्लेनेशन लॉज में है। इफ यू गो इनटू कॉपीराइट एक्ट्स और इफ यू गो इनटू योर जो ट्रेडमार्क एक्ट्स है, उसमें आपको वो बताया, वो गाइडेंस दी हुई है कि क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते। एंड आई डू बिलीव दैट यूर राइट कि कराची एंड मक्का एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि स्टैंड अलोन आप ये कराची प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकते। कराची बिरयानी आप कर सकते हैं, ठीक है। चाय वाला, कराची चाय वाला कर सकते हैं, ठीक है। मक्का फूड्स आप कर सकते हैं, बट मक्का कैन नॉट बी अ ट्रेडमार्क, कैन नॉट बी कॉपीराइटेड, ठीक है। वैस आपकी क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द टर्म ऑफ आईपी केसेस, व्हाट डू यू मीन के ड्यूरेशन ऑफ द केस? Yes, sir. Duration. ड्यूरेशन राउंड अबाउट, देखिए इट डिपेंड्स। if if everything goes well, 25 to 30 weeks, 25 to 30 weeks, अगर आप सार पेशी पे आ रहे हैं and you're making sure कि दूसरी पार्टी भी आ रही है या उनको शो कॉज नोटिस वो इशू हो रहा है कि जी आप क्यों नहीं आ रहे, तो it takes around about 30 to 35 weeks सारे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। बट इट डिपेंड्स, अगर बहुत बड़ा केस है, हाई कोर्ट लेवल पे केस है, तो इट मे टेक दैट टाइम। बट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और सिर्फ एक इन्फोर्समेंट का इशू है या सिर्फ एक शो कॉज नोटिस है, इट मे टेक लेस ऑफ अ टाइम। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस एंड ऑल्सो इन विच कोर्ट द केस इज इन, ठीक है। Consequences of infringing, अच्छा नहीं, एक सेकंड सर, वायलेशन के अगेंस्ट सिविल रेमेडी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिविल रेमेडी से आपको पैसे मिलते हैं। क्रिमिनल रेमेडी से सिर्फ वो बंदा जेल जा सकता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉपीराइट इज नॉट ए सीरियस ऑफेंस इन पाकिस्तान। अभी वो अगेन वो रूल्स को, लॉज को रीराइट करने की जरूरत है, लेकिन इफ यू इन्फ्रिंज अ कॉपीराइट, इट इज नॉट एज सीरियस एज इफ यू इन्फ्रिंज द सेम कॉपीराइट इन अमेरिका। सीरियसनेस वो नहीं है, ठीक है। वो अगेन इट फॉल्स अंडर इन्फोर्समेंट, वो वीक इन्फोर्समेंट की मसला है कि I mean they do not think that it is a practical side of someone's livelihood, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज अवॉर्ड करती है और वो फिर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रिएट करती है, then it is something else. But however the procedure के जी 6 माह कैद होगी है, this is a bailable offense, ठीक है। कुछ इनमें से bailable offenses apart from counterfeiting some things, ठीक है। उसके बाद यानी कि बेल हो जाती है, और यानी कि it's kind of a hoax, but however जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही ये प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप इसको लीनियंट छोड़ देंगे उतनी ही लीनियंट होता जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात समझनी होगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उतना ही सीरियस है जितना कि एक इंसान की जिंदगी सीरियस है। क्योंकि आप सोचें कि आपने पूरी जिंदगी एक चीज पर काम किया, आपने एक इन्वेंशन किया, और वो एक बंदा कॉपी कर ले और जट से वो अपने नाम पे कर ले और उससे पैसे कमाना शुरू कर ले, आपकी लाइवलीहुड रिस्क पे हो गई, आपके पैसे खत्म हो गए, आपका बिजनेस जिस पे आपने इतनी मेहनत की वो तबाह हो गया। आपका बिजनेस इज एज इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल बीइंग, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस ही नहीं है, अगर आप कमा ही कुछ नहीं रहे, तो आप तो अपने आप को मारने की कर रहे हैं ना। तो वी हैव टू टेक इट एज सीरियसली एज मर्डर। जितना मर्डर को हम सीरियस लेते हैं ना एज एडवोकेट्स, उतना ही हमें सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी से आप पैसे लें या किसी की आप जिंदगी लें, गरीब को आप जो है ना पैसों का वो जो है ना उसे पैसे की तंगी लाएं या उसकी जिंदगी छीन लें, इट्स द सेम थिंग। क्योंकि उसने एट द एंड ऑफ द डे उसने मरना ही है, या उसने सुसाइड करके मरना है,
या उसने जो है आपके हाथों मारना है, ठीक है। तो इट इज एज सीरियस ऑफ एन ऑफेंस, और मैं इस चीज पर नहीं इतना एम्फसाइज कर सकता। लोग कहते हैं यार चलो ये आईपी लॉ ये जो है ना ये कोई ये नहीं कि ये मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स के काम है, ये इस्लामाबादी बॉयज के काम है, ये जो है ना ये मम्मी डैडी बच्चे करते हैं। नहीं, दिस इज वेरी सीरियस। एक बिजनेस को नुकसान पहुंचता है, आपका क्लाइंट नुकसान में जाता है, आप खुद सोचें कि कितना उसको नुकसान हो रहा है और कितना आप कुछ कर नहीं रहे और आप कितना नुकसान कर रहे हैं कुछ ना करके। सो टेक इट वेरी सीरियसली। अच्छा जी सर, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सेम लाइक रजिस्ट्रेशन यस, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स डिफरेंट है। यू कैन गो अगेन ऑन टू द प्रोसीजरल गाइडलाइंस ऑफ द आईपीओ। वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि जी आप कैसे रजिस्टर करेंगे। पहले आप एक एप्लीकेशन करते हैं, नाउ इट डिपेंड्स कि आप कॉपीराइट पे कर रहे हैं या ट्रेडमार्क कर रहे हैं। अगर कॉपीराइट कर रहे हैं तो कॉपीराइट के अपने ऑफिसेज हैं और ट्रेडमार्क के अपनी रजिस्ट्रीज हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन पुट करते हैं। दे आई मीन लुक इनटू योर एप्लीकेशन, वो देखते हैं कि जी इनके रिकॉर्ड्स में कोई इस तरह और पहले का तो नहीं है, अगर है तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि जी क्या ये नहीं कि आर यू कॉपीइंग दिस, फिर आप अपनी डिफेंस देते हैं। वो सारा एक प्रोसेस है। अच्छा, give me one example of each give one example each of copyright, patent, trademark. Each example of copyright, patent and trademark. Copyright का example it is कि जी for a very beautiful example would be किसी की published material, published book को copy करना, उससे मटेरियल कॉपी करना एंड नॉट गिविंग हिम क्रेडिट और हर क्रेडिट, ठीक है, दैट इज कॉपीराइट। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इज किसी की इन्वेंशन को कॉपी करना, ठीक है। एंड ट्रेडमार्क इज किसी का ट्रेडमार्क, जो लोगोज होते हैं या लोगोज में जो कलरिंग्स होती हैं, जिस तरह पेप्सी का अपना लोगो है और कोका कोला का अपना लोगो, कोका कोला का अपना लोगो है, यानी कि आप पेप्सी की एक बॉटल उठा के देखें और कोका कोला की बॉटल उठा के देखें तो इट इज डिफरेंट, ठीक है। सो दे आर ट्रेडमार्क्स। इवन फोन्स, जैसे मैंने आपको कहा, फोन्स आर ट्रेडमार्क्स एज वेल। इट डजंट हैव टू बी a logo, it can be the product itself which is a trademark, ठीक है। which is one each example. Many countries make and use cracked versions of many websites like editing and software Premiere Pro. Then why measures are not taken against them, not take legal action? अब देखिए, जो इंटरनेट है ना वो एक बड़ा अजीब सा एक आपके लिए वो क्रिएट करता है, एक लैंडस्केप क्रिएट करता है। वहाँ पे इन्फोर्समेंट आपकी बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज एंड वहाँ पे इन्फोर्समेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, इन्फोर्समेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस मुल्क में। आप पाकिस्तान में तो इन्फोर्समेंट उस तरह होगी, आप अगर यूके में है, यूएस में है, तो देन देयर इज इन्फोर्समेंट चांसेस कि वहाँ पे इन्फोर्समेंट हो जाएगी। नॉट सेइंग कि जी इन्फोर्समेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, बहुत से ममालिक में वहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं होती। जिस तरह स्पेन में इन्फोर्समेंट नहीं है कॉपीराइट की ज़्यादा, पोर्चुगल में नहीं है, ठीक है। इवन इफ देयर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, वहाँ पे भी इन्फोर्समेंट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ टाइट योर इन्फोर्समेंट लॉज आर। जितने आपके इन्फोर्समेंट लॉज टाइट होंगे, उतनी ही आप जो है ना टाइट ग्रिप होगी, उतनी ही आपको टाइटली जो है ना आप उसको वो कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं अपने इन्फ्रिंजमेंट्स को और सारी चीज़ों को। सर, एआई से बनाए गए आर्ट को अगर कोई और सेल करे तो क्या क्रिएटर का पास रेमेडी होगी अंडर ये हमारा कल का टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इस पे कल पे बात करेंगे। लेकिन एआई अगेन इट इज अ डिफरेंट डिमेंशन जिस पे हमें कल बात करनी है इंशाल्लाह। सर, कैन स्टूडेंट यूज कॉपीराइट मटेरियल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस? इफ यस, देन व्हाई इज इट नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस? इट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस। इट इज नंबर 1 एन एकेडमिक ऑफेंस एंड नंबर 2 इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर यूनिवर्सिटी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एक रस्टिकेट कर सकती है एंड नंबर 2 आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकती है। सो बी वेरी केयरफुल
कि आप किसी का अगर मटेरियल यूज करते हैं और उस बंदे को अगर पता लग जाता है कि ये उसके पब्लिश मटेरियल में आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो ही कैन कम अगेंस्ट यू फॉर डैमेजेस। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। टैरिफ बाय कस्टम्स ऑफिसर related to Customs Act. अच्छा, Customs Act, you mentioned that those items are formally, यार डिफरेंट आइटम्स हैं। देखिए, जिस तरह आपके हो गए लेटर्स हो गए, ठीक है, लेटर्स को मैं एक बुक शेप दे दूं, इट डज नॉट बिकम अ पब्लिश मटेरियल, वो एक बुक नहीं है। ठीक है, सो एंड यू कैन नॉट कंसिडर इट अंडर पब्लिश मटेरियल्स। ठीक है, इसी तरह ऐसा है कि कोई फ़ोन जो आपने खुद इजाद किया, आपने खुद फ़ोन बनाया, ठीक है, तो वो अगेन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या वो एक उसमें आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में आता है, इवन दो इट इज़ योर ओन फोन, यू हैव डेवलप्ड इट योरसेल्फ। ठीक है, इट मे बी योर ओन पेटेंट। ठीक है, तो उस पर टैरिफ क्यों लेंगे ये, और उस पर टैरिफ का क्या होता है? अच्छा जी सर, व्हाट इज द फर्स्ट कॉपी एंड पेटेंट डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट कॉपी, यार देखिए, फर्स्ट कॉपी तो वो होती है जो एक कंपनी खुद बनाती है, या एक कंपनी के जो सिग्नेटरी जो वो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो खुद बनाते हैं। पेटेंट डॉक्यूमेंट्स आर समथिंग एल्स। पेटेंट इज आई मीन जो डॉक्यूमेंट जो पेटेंट को रिकग्निशन दे रही है या पेटेंट को जो डिफाइन कर रही है, दोज आर पेटेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, जी सर। Sir, our session time is already up, so may you please end the session for today? We're gonna take other questions for next day. That's fine. ठीक है, that's fine. Thank you so much and for joining us today, and inshallah we'll see you tomorrow. You may leave now. Thank you everyone.